السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابا. أحمده وصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. اچھا بھائی، کل ہم نے اے، پڑھا تھا سبق نمبر 5، حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش کی ادائیگی. یہی پڑھا تھا نا جی؟ آپ بولیں گے نا ساتھ ساتھ، پھر کام بنے گا نا. ہیلو. تو ہم نے یہ سبق پڑھا تھا حرکات یعنی زبر، زیر، پیش کی ادائیگی. زبر سیدھا منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے، جیسے با. با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. اس زبر کو، زیر کو، پیش کو نہ جھٹکا دینا ہے، تیز پڑھنا ہے طرح کہ جھٹکا آ جائے، اور نہ مجہول پڑھنا ہے، جس طرح بے، تے، سے، بو، تو، سو. اس طرح نہیں پڑھنا. اور اور کھینچنا بھی نہیں ہے. تین کام، تین کام نہیں کرنے. ایک کھینچنا بھی نہیں ہے، اور تیز بھی نہیں پڑھنا کہ جھٹکا محسوس ہو، اور تیسرا کام کیا ہے؟ مجہول بھی نہیں پڑھنا. معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. زبر سیدھا منہ کھول کر ادا کیا جاتا ہے، جیسے با، تا، سا. یہ دوبارہ دہرا رہا ہوں. زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر، جیسے بی، ٹی، سی. پیش ہونٹوں کو گول نہ تمام بند کر کے، جیسے بو، تو، سو. زبر، زیر اور پیش کی مشق: جعل، اخذ، سجد، ابیلی، ابیلی، ابیلی. کتب، صحف، فعل. تینوں اکٹھی حرکات: خلق، خلق، خلق. دعی، قرئ، اخذ، بغی، کتب. حرکات کو مجہول پڑھنے اور کھینچنے سے بچائیں. زبر، زیر اور پیش کو مجہول مت پڑھیں. مثلا الحمد، الحمدو. اس طرح نہیں پڑھنا، الحمدو پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے. الحمد، الحمدو. اس طرح بھی نہیں پڑھنا، کھینچنا بھی نہیں ہے. نہ کھینچنا ہے، نہ جھٹکا دینا ہے، نہ مجہول پڑھنا ہے. الحمد للہ رب العالمین. نمبر ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ حرکات کو کھینچنے سے بچیں، کیونکہ زبر میں الف اور زیر میں یا اور پیش میں واو پیدا ہو جاتی ہے. جیسے الحمد للہ کی حام کی زبر کو، دال کی پیش کو، اور ہا کی زیر کو اس طرح کھینچ کر پڑھنا، جیسے الحمد للہ. اس طرح بھی نہیں کرنا. تیسرا کام کیا ہے؟ جھٹکا بھی نہیں دینا. تیز پڑھیں گے تو جھٹکا ہے. ب، بی، بو، تا، تی، تو، تھا، سی، سو. اس طرح بھی نہیں کرنا. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. اس طرح پڑھنا ہے. اور سبق نمبر 6 آج کا: تنوین، نون تنوین، شد اور جزم. تنوین کسے کہتے ہیں؟ یہ نون تنوین کیسے کہتے ہیں، شد کسے کہتے ہیں، اور جزم کیسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش. جس طرح یہ علامات ہے، دو زبر کی، دو زیر کی، دو پیش کی، میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں. جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن،
बा दो पेश बुन। इस तनवीन में अलिफ को नहीं पढ़ेंगे कि बा अलिफ दो जबर बन, इस तरह नहीं पढ़ेंगे। बस बा दो जबर बन, बा दो जेर बिन, बा दो पेश बुन। तनवीन की मश्क, ता जबर ता, बा जबर बा तौबा, कौफ दो जबर कन, तौबा कन, इस तरह नहीं कहेंगे। कौफ अलिफ दो जबर कन, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तौबा कन, काफ जबर का, बा जबर बा, दाल दो जेर दिन, का दिन। काफ पेश कू, ता पेश तू, कूतू, बा दो पेश बुन, कूतू बुन। लाम पेश लू, बा जबर बा, लूबा, दाल दो जबर दन, लूबा दन। लाम पेश लू, मीम जबर मा, लूमा, जा जबर जा, लूमा जा, ता दो जेर तीन, लूमा जा तीन। वाव जबर वा, सीन जबर सा, वसा, طا दो जबर तन, वसा तन। طا जबर طا، با जबर बा, तौबा, قاف दो जेर किन, तौबा किन। गईन जबर गौ, गई। इसमें बताया था कि गईन पढ़ना, जैसे गई, गई, आई, आइन, गईन, खई की तरह। आइन गईन, गई, गईन जबर गौ, बा जबर बा, गौबा, रा जबर रा, गौबा रा, ता दो पेश दुन, ता पेश तो दा तो ता दो पेश तुन, गाबा रातुन। और वक्फ करेंगे तो यहाँ पे तबक़ा, आखिरी हर्फ को संग कर देंगे, तो अब अलिफ से बदल जाएगा। तबक़ा, कबद, कुतुब, लुबदा, लुमज़ह। हाँ, ये ता गोल ता वक्फ की हालत में हा बन जाती है, लुमज़ह। वसतन, वसतन, वसतो, तबकिन, तबको। आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे, जज़म लगा देंगे वक्फ की हालत में। गबरतुन, गबरह। भाई समझ आ रही है बात? जी क्या बिल्कुल। उस्ताद जी, ये दो पेश और दो जेर पे जब हम वक़्त करेंगे, जी जी। वक़फ करेंगे तो फिर उसको बिल्कुल साकिन कर देंगे। हाँ, साकिन कर देंगे और आखिर हर्फ को। जी। दो जबर होगा तो फिर वो एक जबर अलिफ, पड़ेंगे। एक अलिफ अलिफ के साथ बदल देंगे ना एक को। जी वसतो, ठीक है। इस तरीके, तबको, जी, ठीक है लोबदा। जी, ठीक है। समझ आ गई? तो अगर जी दो जी जेर आगे। होंगी, दो पेश होंगे, तो उसको आखिर हर्फ को साकिन कर देंगे, और गोल ता जो है ये वक्फ की हालत में हाँ बन हा बन जाएगी। जाए, हा बन जाएगी, लो मजा, जी गबरा। समझ आ गई बात? ये भी जी उस्ताद मैंने जी। साथ साथ बता के जा रहा हूं ताकि पढ़ने का तरीका आपको आए। समझ गए ना? मकसद तो ये सीखना है ना, पढ़ना, पढ़ना सीख रहे हैं ना। हाँ बात जी। समझ आ गई है? जी। जी बिल्कुल। जी आ गई है, आ गई है। जी। अब है नून तनवीन। तनवीन को अदा करते वक्त नून की आवाज पैदा होती है, उसे नून तनवीन कहते हैं। यानी तनवीन को जब अदा करते हैं ना, तो उस वक्त नून की आवाज पैदा होती है, उसे नून तनवीन कहते हैं। समझ आ गई बात? जैसे मसलन बन, बा दो जबर बन, तो बन में नून की आवाज आ रही है। यानी ये तो लिखने में ऐसा आएगा, बा दो जबर बन, पढ़ने में बा जबर नून बन है। समझिए ये बात, ये ब्रैकेट में देखो ना, ब्रैकेट में ये पढ़ने वाला है, लिखने वाला वो दूसरा है। समझ आइए बात की नहीं आई? जी जी। हमजा दो जबर अन, और ब्रैकेट के अंदर देखो हमजा नून जबर अन, दोनों की आवाज एक जैसी है, नून साकिन की जी भी और तनवीन की भी, दोनों की एक जैसी है। और इसमें नून की आवाज आ रही है, बन, 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 अन, अन, तुन, तुन। जी। मसा दिन, मसा जी। दिन। ये देखो, दूसरा ब्रैकेट के अंदर, हुदन, 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 नून की आवाज आ रही। समझ आ गई बात? इसी को नून तनवीन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? नून तनवीन। चलो। कोई समझ आई है या नहीं आई? फिर बताऊं? जी
आ जी रही है उस्ताद जी, आ रही है। अच्छा, नून जी, कुतनी, समझ आ नून, गई। जी नून कुतनी जो है, ये जी जी फरमाए। ये जो हुदन है, इसका की या लगी हुई है, तो इसको भी हुदन पढ़ेंगे। हाँ ये देखो ना, या भी नहीं पढ़ेंगे हम। मसलन पढ़ेंगे हा पेश हु, दाल दो जबर दन, हुदन। या को नहीं पढ़ेंगे, उधर अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, इधर या को भी नहीं जी पढ़ेंगे। तनवीन में समझ आ गई बात, जी। ये याद जी रखना है। यानी यहाँ पे या को भी नहीं पढ़ेंगे, वहां अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे। समझ तनवीन आ, के बाद जहां भी या है, हाँ उसको तनवीन के बाद जहां भी या है नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे। और हाँ वक्फ की हालत में पढ़ेंगे, वक्फ की हालत में आ जाएगा हुदा, तो या हुदा या आ जाएगी ना, समझ हुदा। गए? हुदा, ठीक है। समझ आ गई बात। जी, तो हुदन जी। और वक्फन हुदा। हाँ, और बार में भी अलिफ वापस आ जाएगी जब वक्फ करेंगे, बा, अबदा, पीछे जो गुजरा है ना देखो ना, वसता, अबका, लुबदा। समझ आ गई ये बात कि नहीं? वक्फ की हालत में तो वापस आ जी जाएगी, आगे। लेकिन वैसे नहीं पढ़ेंगे उसको। इधर भी ऐसे। नून कुतनी उसी, और कोई चीज है पूछने वाली? ठीक है नहीं। उस्ताद जी। अच्छा, नून कुतनी उसी नून तनवीन को जब जेर देकर अगले हर्फ से मिला देते हैं तो इसको नून कुतनी कहते हैं। यही चीज होती है, ठीक है ना जी? इसी में आप ये समझे, लो माजा तिन है, लो माजा तिन या मासा दिन है, इधर नून है ना, मासा दिन, ये आगे देखो ना। जी तो अगर मिसाल के तौर पर मसादी, आगे अल्लादी लगा दे, मसादी नीलदी पढ़ेंगे, मसादी नीलदी। एक तो एक जेर जो है ये खड़ी है दो दाल के नीचे, और दूसरी जो वो है, वो तनवीन जो है वो नून है, नून साकिन है। वो नून है जो अभी बताया था पीछे, नून तनवीन किसी को कहते हैं ना, समझ ना, बन बन की आवाज आ रही है, तो वो नून साकिन है। तो वो नून जब साकिन है तो उसको जेर देकर आगे हर्फ से मिला देंगे। बात समझ आई है? मसलन नहीं आई। बताता हूँ। इसी नून को तनवीन जब जेर देकर अगले हर्फ से मिला देते हैं उसी को नून कुतनी कहते हैं। मसलन लो माजा तिन है असल में ना, असल क्या है? लो माजा तिन अल्लादी, असल में क्या है भाई? जी। लो माजा तिन लुमा। जाते मिल्ला जी। अल्लादी। अब एक तो दो दो है ना, दो उस जेरे है ना, दो जेरे है ना, लो माजा तिन हाँ दो जी। जेरे है ना, कि नहीं? हाँ जी। जी तो तिन है, एक तो जेर होती है तिन, ता जेर नून तिन। जिस तरह मासा दिन, आगे देखो मासा दिन लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये आगे नून आ गया। तो ये भी उस तरह लो जी। माजा तिन आएगा, ता जेर नून तिन, लो माजा तिन। तीन। तो लो माजा ते आगे जो नून साकिन है उसको जेर दे देंगे, जेर दे के अगले हर्फ से मिला देंगे। समझ नहीं आई बात? आगे समझ। आगे जी। आगे समझ बात? वही आप पीछे जी वाला जो हाँ पढ़ जी। के आए ना उसी चीज को देखो ना आप, मसा दिन, हुदन, ये तो नून साकिन है ना, इसी को तनवीन देकर, इसको इसको जेर देकर अगले हर्फ से मिला देंगे, यही कह रहे हैं। समझ आ गई बात? हाँ जी जी। लो अगर अगर माजाती, यहाँ पे नून, जी जी। अगर यहाँ पे नून ना लिखा हो और ता के नीचे दो जेर हो, तो भी हम पढ़ेंगे तो लुमाजा भी लो तिन्निल्लाज माजा भी। तरीलाजी पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल, अगर नून ना भी लिखा हो फिर भी हम इस तरह पर मिलाएंगे तो ऐसा तब हो मिले। ऐसा हो सकता है कि नून ना लिखा और नीचे दो जेर लगी हो। बस वो आसानी के लिए लिख दिया है हमारे लिए, समझिए ना, वरना ना लिखा हो तो सही। जी फिर भी जी। हम इस तरह पढ़ेंगे। हर जगह लिखा सही। होता है, वो हमारी आसानी के लिए लिखा है। ये जबर जेरी पहले सही। कुरान में नहीं थी, अरबी में जबर जेर नहीं होती, जबर पेश ये चीज नहीं होती, समझ गए ना? ल- सही। जी तो जी। आप किताबों में देखें, किताबों में नहीं होते। तो ये हमारे आसानी के लिए बनाया है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, ठीक है ना जी? कि आमीन। उस्ताद जी, हाँ, जहाँ जहाँ कहीं भी नून नून तनवीन होगा, आगे उस अगर नून मिलाएंगे, तनवीन को जी जी, नून कुतनी से बदलने के लिए एक जेर को हज़फ कर देंगे और उसको नून के साथ अगले लफ्ज नहीं से नहीं मिला नहीं देंगे, वो तो नून कुतनी बन जाएगी। अब नहीं करेंगे। वो असल में एक जेर जो है, एक जेर तो है ना, दूसरी जी जेर जो वो नून है, वो असल नून है वो। ठीक होगी। ठीक समझ ठीक आ गई ठीक। बात? वो नून साकिन जी है, अभी आ हाँ गई। जी।
दूसरी जो अभी आ गई। जेर है ना वो नून साकिन है। पीछे आप देख रहे हैं मासा दिन, तो आगे मासा जी दिन ये है पढ़ने वाला मासा दिन, तो जी है जी। भी नून वो साकिन। तो फिर क्या वो करेंगे, सही उसको गिराएंगे सही। कैसे? हजफ नहीं करेंगे उसको, गिराएंगे नहीं। समझ आ गई बात मेरी? जी जी जी, आ गई। अगर तो इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो लुमाजा, लो माजा लुमाजा और अल्लादी, अल्लाजी लो पढ़ेंगे। माजा अल्लादी पढ़ेंगे। अगर मिला के अल्लाजी। पढ़ेंगे तो लो जी। माजा तीन अल्लादी। खैरा, खैरन असल में क्या है? खैरन, सही रन। खैरन खैरन। अल वसियतो, खैरन अल वसियतो पढ़ेंगे। अगर पढ़ेंगे अगर अलग पढ़ेंगे खैरन अल वसियतो। अगर मिलाएंगे नहीं, खैरा अल वसियतो पढ़ेंगे, खैरा अल वसियतो। समझ आ गई बात? बैठ के जी। पढ़ते थे। जी। जी उस्ताद जी। खैरा वक्फ खैर कर, अनिल वसीयत, अगर मिला के तो फिर पढ़ेंगे तो अलिफ नहीं खैरन अल पढ़ेंगे वसियत। खैरा? खैरन है असल में ना, असल तो खैरन है ना। जी। हाँ तो जी, हाँ जी। खैरा पढ़ेंगे ना, खैरा अल वक्फन। वसियतो। हम्म, अगर मिला के पढ़ेंगे तो खैरन अल वसियतो। जी। कदीरुन लदी, कदीरुन है, कदीरुन है। अगर मिलाएंगे नहीं तो कदीरुन अल्लदी। समझे ना? अगर मिला के पढ़ेंगे तो कदीरुन लदी। समझ आ गई बात? जी। यानी तनवीन वक्फ। में जो है ना, एक तो जेर है, दूसरी जो जेर है वो नून है असल में। आखिर में देखो ना बन, हर चीज बा दो जबर बन, ता दो जबर तन, नून की आवाज आ रही है, वो नून साकिन की आवाज आ रही है। नहीं जी समझे बात जी? जी। हमजा दो, जी। ये जो पीछे देखो हमजा, कदीर, हमजा दो जबर अन आ रही है, ता पेश दो, ता दो पेश तुन, हाँ, दाल दो जबर दन, जी हार पेश हूँ, दाल दो जबर दन, ये सारी आवाज आ रही है। हुदन, मसा दिन, आ रही है आवाज। तो उसी को बस क्या है, जी, नून साकिन को जेर देकर आगे हर्फ अगले हर्फ से मिला देंगे। ये मकसद है। समझ? कदीरुन, इसको वक्फन कैसे पढ़ेंगे? कदीर कदीर। अल्लदी। सही। समझ आ गई है? कदीर जी, दोनों अल्लदी। पेश जी खत्म हो जाएंगी फिर। जी बिल्कुल, वो साकिन कर देंगे ना उसको। खैरन को जी। खैरा अलवसियत। जी समझ आ गई है सारी बात? जी जी, उस्ताद जी आ बिल्कुल। गई। जी। आगे जज़म की बात है। जज़म इस शक्ल को कहते हैं, यानी इस शक्ल, ऐसी भी शक्ल होती है, ऐसी भी शक्ल होती है। और अरबी उसमें गोल दायरा भी होता है, गोल दायरा, वो भी अलामत है किसकी? यानी उस जज़म। जैसे। जज़म की। और बसा औकात कुछ भी नहीं लिखते वहां पे अरबी नुस्खे, आप देखें ना अरबी नुस्खे में, दिखाऊंगा आपको अरबी नुस्खा। ये देखो आपको, ये अभी मैं अब ढूंढ के रखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है ना इसमें। तो वो देखो यहाँ पे नस्ताइन में या अल आलमीन में देखो, या के ऊपर जज़म नहीं है अर्रहीम में, अर्रहीम में भी जज़म नहीं है। बड़ा कर दूं? ये देखो, जी, बड़ा कर लिया, जूम कर लिया। ये देख लें, अल हाँ जी। आलमीन में या पर कोई जज़म नहीं है। हाँ ठीक है ना जी। जी? और इधर अर्रहीम में जज़म नहीं है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जज़म है, कुछ ना लिखा हो तो। समझ आ गई जी। बात? हाँ जी। अ, जी। इस तरह की शक्ल, यानी इस शक्ल की तरह है, यानी ये आधी दाल, दाल छोटी दाल कह दो, या आधा दायरा कह दो, या उल्टा वो आठ, जो आठ की शक्ल होती है ना, उर्दू में आठ जो लिखा जाता है उसकी शक्ल। ठीक है ना जी? तो जज़म वाले हर्फ को हर्फ साकिन, जज़म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? हर्फ साकिन कहते हैं, साकिन कहते हैं। जज़म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? साकिन, हल्फे हर्फ साकिन। साकिन। हर्फ साकिन। ये ता देखो, ता के ऊपर जो है ना जज़म लिखी है, नून के ऊपर जज़म लिखी है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना? कहते हैं हर्फ साकिन कहते हैं। जज़म वाला हर्फ, जज़म वाला हर्फ पहले हर्फ से मिलकर सिर्फ एक मर्तबा पढ़ा जाता है, क्योंकि वो खुद यानी जब साकिन हो शुरू वाला, तो वो नहीं पढ़ सकते, आप कैसे शुरू करेंगे उससे? शुरू नहीं हो सकता। तो लाजमी किसी को, जैसे मिसाल तौर
अशराओ यानी मतलब है कि अगर शुरू करता हूँ, अशराओ शुरू करता हूँ, तो अगर उसमें हमजा नहीं लगाएंगे तो कैसे पता, कैसे अशरा का लफ्ज बनेगा? नहीं बन सकता, यानी शुरू नहीं कर सकते खाली आप जो है जजम से शुरू नहीं कर सकते, लाजमी वो दूसरे का मोहताज है, दूसरा हर्फ लगाना पड़ेगा हमजा। ठीक है ना जी? हमजा जब जी लगाएंगे जी बिल्कुल। तो वो आगे काम चलेगा। तो वो पिछले हर्फ से मिलकर एक दफा पढ़ा जाता है, लेकिन शद जो है वो दो दफा पढ़ा जाता है। शद जो है इसके बरअक्स है। शद कितने पढ़ा जाता है? दो दफा। एक दो दफा दफे पिछले दो हर्फ से, और दूसरी मर्तबा खुद बेनफ्स हो पढ़ा जाता है। दो दफा पढ़ा जाता है, लेकिन जो जजम वाला हर्फ है वो एक दफा पढ़ा जाता है पिछले हर्फ से मिलकर बस, फकत। समझ आ गई बात? जी। हाँ जी। अनजिर, अनजिर, देखो ना, एक दफा पढ़ा जीर। जाता है अनजिर, एक दफा अनजिर, जिर। और रा को, रा भी रब जज़म है तो एक दफा पढ़ा जाता है अनजिर। यतलू, अनजिर यतलू, ये भी इस तरह है। यस्आ, ये साया, साया। युगनी, युगनी। नहीं। लग़वन, लग़वन। युसरन। अगर हम वक्फ करेंगे, अनजिर अंदर, अंदर को अंदर पढ़ेंगे, वक्फ करेंगे तो यतलू को यतलू, साया को साय, 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 इस तरह करेंगे वक्फ। ठीक है ना? योगनी को योगनी पढ़ेंगे, लगवन को लगवा, युसरन को युसरा। युसरा। हाँ जी। आगे जजम देख रहे उस्ताद हैं ये अनज़िर है, हम्म। ये इस पे गुन्ना नहीं होएगा, अनज़िर नहीं पढ़ा जाएगा? हाँ, ये वो तो गुन्ना तो होगा लाजमी, आदिर ये तो होगा। अभी जी गुन्ने की ठीक है। बातें नहीं है ना, फिर गुत्ते में करेंगे। ये तो बस जी ऐसे ठीक है। समझा रहे हैं। गुन्ना तो है। ठीक है। युसरन, युस, ठीक है ना जी? तो यहाँ भी खुदा गुन्ना होगा फिर तो, अगर वो बात देखते हैं तो। ठीक है ना जी? लगवई ठीक है। युसरा, लगवई युसरई यख्शा, इस तरह पढ़ेंगे तो। वो तो बाद में आप बताएंगे आप लोगों को। इंशा। युसरा, यख्शा, ये जज़म, हाँ जज़म की बात हो रही है, अब जज़म की बात कर रहे हैं ना। आदनिन, आदनिन। तो नहीं। निन। युसरा को युसरा पढ़ेंगे, यख्शा को यख्शा, ये वक्फ की हालत में। आदन को आदन, ठीक है ना जी? और अब कौ को अदन। अब कौ पढ़ेंगे। अब कौ। हाँ। अब कौ। कदहन को कदहा, मिस्कुन को बिस्क, अब हाँ, मिस्क। मिस्क। हाँ। मिस्क। जी। कौबा, कौबा, कौबा। कौदुबा। जी। कौदुबा। अभी जजम की कौदुबा। जजम की समझ आ गई है जी? जी जी आ बस। चाहे गई। वो आठ, आठ हो, चाहे वो ठाठ हो, कोई भी हो ना, है जी, सब ये जजम जी है, ये अलामत जजम है। तो कुछ भी उस्ताद ना जी, लिख। जी। साया दोबारा पढ़िएगा, साया जज़म पे के साथ कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, सायु, साया। सायु। सायु। हाँ, सायु। सायु। हाँ सायु। जी। सही। कोई इबहम हो तो बताइए। हम्म। मतलब कुरान पाक में जहां कहीं या को साकिन हम करेंगे वहां पर ऐसी ही आवाज निकालेंगे। अगर उससे पहले पीछे वाला भी जजम होगा तो फिर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी जी जी। ठीक हो गया। जैसे योगनी को योगनी, जो। जी। ये भी या है ना। जी यख्शा, जी ये उस्ताद खड़ी जी। जबर होगी तो यख्शा, खड़ी जबर ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा जी, ठीक। सबक नंबर 7 है हरूफ मद्दा, हरूफ मद्दा के बयान में। मद्दा। जी। हरूफ मद्दा आप पढ़े हैं, वो कहाँ से निकलते हैं हरूफ मद्दा? अलाउल फम। है खलाउल फम, शाबाश। और कितना है? तीन। तीन तीन। है जी। तीन। और हरूफ लीन भी आपको बताया अलिफ तकरीबन। वाव या। जी, अलिफ वाओ या। अलिफ से पहले क्या हो? जबर हो। जबर। जी। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा, या से पहले जेर या मद्दा, वाव से पहले पेश या वाव मद्दा। हाँ जी। लेकिन याद रखना, जबर हो। मेरी बात सुने, या से पहले। मेरी बात सुनो। यानी ऐसे नहीं कहना कि वाव से पहले पेश हो, या से पहले जेर हो। ऐसी आपको दिखाऊंगा कि या से पहले पेश भी है, वाव से पहले पेश भी है, या से पहले जेर भी है, लेकिन वो बद्दा नहीं है। जी। ये क्या करना है, हमने क्या क्या कहना है? मैंने बताया था पहले, वाव वाव साकिन से वाव पहले, साकिन। वाव साकिन कहना है, जी। वाव साकिन से पहले क्या हो?
پیش ہو، پیش. یا پیش. ساکن سے پیش. پہلے زیر ہو، یہ شرط لگانی ہے، یہ کہنا ہے. جی سر، مثلا ٹھیک ہو گیا. ہوا 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 ہے نا، ہوا واہ ہوا جی واہ ہوا علی کل شیء قدیر ہے نا، ہوا. تو اب وہ جی واو کے پیچھے کیا ہے؟ پیش تو ہے، لیکن یہ مدہ نہیں ہے. جی جی سمجھ گئے بات؟ جی. ہیا جی ہاں جی. ہیا ہیا. اب یا ہے، ہیا یا ہے تو یا سے پھر زیر بھی ہے لیکن مدہ نہیں ہے. یا ساکن نہیں. ہاں یا ساکن کہنا ضروری ہے، وہ ساکن کہنا ضروری ہے. الف تو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک الف ہے. ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن واو ساکن کہنا ضروری ہے، یا ساکن کہنا ضروری ہے. بات سمجھیں آپ؟ ٹھیک. جی. جی تو آپ کو مثال کے ساتھ سمجھا دیا ہے کہ ہیا ہوا، یہ دونوں مثالیں کیسے غلط پڑے گی. تو جو میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ جو جیم شین یا حروف شجریہ وسط لسان زبان کے درمیان سے نکلتے ہیں وہ بھی غیر مدہ ہے، وہ متحرک ہے، جی حرکت والی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا اس طرح واؤ جو ہونٹوں سے نکل رہا ہے وہ بھی متحرک ہے، غیر مدہ ہے، مدہ نہیں ہے. جی. مدہ صرف کہاں سے نکلتا ہے؟ خلا الفہم سر. خلا الفم، جو جوف دہن سے. یاد رکھنا یہ بات. آگے سمجھ بات. جی. جی ہاں جی. اب دیکھو حروف لین، حروف لین جو ہے، حروف لین، لین کا معنی نرم، نرمی سے ادا کرنا. ٹھیک ہے نا جی؟ حروف کا معنی حروف ہو گیا. مدہ کا معنی کھینچنا، حمزہ کا معنی حمزہ، الف معنی الف. اچھا، تو یہ لین وہ کیا ہے؟ دو حرف ہیں لین کے، تین واو اور یا. تین نہیں بن سکتے. الف سے پہلے تو وہ پہلے الف سے پہلے اگر زبر لگائے تو وہ تو پہلے مدہ ہے، لین کیسے بنے گی جی بتا؟ جی تو جی وہ نہیں بنے اس، گی. جی وہ تو نکل گئی اس سے، الف نکل گئی. باقی کیا بچے؟ دو، واو اور یا. جی واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے، ادھر بھی یہ کہیں واو ساکن کہنا ہے. واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو. یا ساکن سے پہلے زبر ہو. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. سمجھ آ گئی بات؟ جی سر. جی ہاں جی. ہاں. نہیں سر. اچھا، حمزہ اور الف، حمزہ اور الف کیا مطلب؟ حمزہ اور الف میں فرق کرنا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ یہ حمزہ کیسے ہے؟ حمزہ وہ ہے جو الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش لگا دے، جزم لگا دے تو وہ ہم الف نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ صاحب بن حمزہ. جاتے حمزہ. ہیں. الف سے حمزہ صاحب بن جاتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ جی. الف ختم، وہ حمزہ بن گیا. الف کے یہ وہ الف خالی ہوتا ہے، ہمیشہ خالی ہوتا ہے الف. الف سے، اور الف جو ہے وہ درمیان میں بھی آتا ہے، آخر میں بھی آتا ہے، لیکن شروع میں نہیں آتا الف. لیکن حمزہ شروع میں بھی آتا ہے، درمیان میں بھی آتا ہے، آخر میں بھی آتا ہے. فرق یہ آپ سمجھ لیں، فرق حمزہ اور الف کا. سمجھ گئے بات؟ باقی موٹا بھی جی آپ کل بابا. پڑھایا تھا آپ کو. موٹا موٹا الف کب ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے موٹا حرف ہو تو موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر باریک حرف ہو تو باریک. یہ تو کل بتایا تھا پرسوں. سی جی حمزہ اور الف کا فرق دوبارہ بتا دیجیے. حمزہ الف میں فرق یہ ہے کہ الف جو ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، خالی. خالی ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے. اور حمزہ جو ہے وہ جزم لگا دیں الف کے اوپر یا زبر زیر پیش لگا دیں تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ پھر الف نہیں رہتا. اور الف حمزہ جو ہے وہ شروع میں بھی آتا ہے، درمیان میں بھی آتا ہے، آخر میں بھی آتا ہے. لیکن الف جو ہے درمیان میں اور آخر میں آتا ہے، اور کیا یعنی اینڈ شروع میں میں، شروع میں نہیں آتا. جیسے مثال طور آگے آ رہا ہے، مثالیں بتائیں گے آپ. حروف مدہ تین ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ زبر، جی زبر کے بعد خالی الف، زبر کے بعد خالی الف. خالی علی. جیسے جیسے با، را، با الف زبر با، را الف زبر را. یہاں پہ الف پڑھیں گے، جب یہ مدہ پڑھیں گے تو پھر الف پڑھیں گے. لیکن اگر تنوین ہوگی تو پھر الف نہیں پڑیں گے. نہیں پڑھیں گے. ایک زبر ہوگی تو پھر پڑھیں گے. اگر دو کیا ہو، اگر تنوین ہو تو پھر الف کو نہیں نہیں اللہ پڑھیں پڑیں گے. گے. نہیں پڑے.
और या को भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। हाँ, बा अलिफ जी। जबर बा, रा बा। अलिफ जबर रा। और तो ये अलिफ मद्दा है, इधर भी रा के बाद भी अलिफ मद्दा है। जेर के बाद जजम वाली या, जैसे बी, री, बा या जेर बी, बी। ये या साकिन है, उससे पहले जेर है। जी। री, री में भी इस तरह रा साकिन है, और या उससे पहले या साकिन, उससे पहले रा के नीचे जेर है। जी। समझ आ गई है? ये या पहली अलिफ जी। मद्दा, ये बा या मद्दा होगी। पेश के बाद जजम वाला वाव, देखो ना, ये कह रहा है जजम कह रहा है, जजम वाली या भी कह रहे हैं, ये याद रखना। यानी या साकिन। या साकिन जरूर कहना है, जजम वाली कहना है, या साकिन, क्योंकि मैंने अब जी। मिसाल दी है आपको। जैसे हाँ जी। हुआ हिया, हाँ वाह जी। हुआ। जी जी। वाह अ, हुआ। जी हाँ, वाह हुआ। जैसे सू, रू, सू, रू, जी, सीन वाव पेश सू। एक तख्ती भी आती है ना हरू मद्दा की, अलिफ बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा यादर बी, पढ़ते हैं ना, इसमें कायदे में जी। है ना। हाँ वही है। जी। ये सू, रू, ये पूरे हर्फ की है वो तख्ती है, सब हर्फ है। तो ये क्या है? वाव मद्दा है। उर्दू में अलिफ मद्दा बिलअमूम कदरे मोटी आवाज के साथ अदा होता है। उर्दू में अलिफ मद्दा बिलअमूम कदरे मोटी आवाज के साथ अदा होता है। जैसे माल, माल, हाल, हम मोटा करके पढ़ते हैं, कहते हैं ना। हाँ। हाँ, जैसे माल और हाल का अलिफ। अच्छा जी। लेकिन हाँ। कुरान, जी, लेकिन कुरान मजीद में अलिफ निहायत बारीक अदा होता है। ये उर्दू की बात कर रहे हैं, तो उर्दू में अलिफ मद्दा बिलामुम कदरे, मोटे होते हैं। हाँ, मोटी आवाज मोटी के साथ आवाज। अदा होता है। माल में तो अलिफ, ये अलिफ मद्दा है ना माल में। हाल में हा, जी। हा के बाद अलिफ है ना, मीम के बाद अलिफ है ना। समझ आ गई ये बात जी। का अलिफ। जी। लेकिन कुरान मजीद में अलिफ निहायत बारीक अदा होता है। जैसे अलबत्ता, अलबत्ता, जब वो मोटे हर्फ के बाद आए तो फिर अलिफ मोटा पढ़ा जाता है। जैसे सौदीकीन, सौदीकीन। अब इसको, अलिफ को बारीक पढ़े और साद को मोटा पढ़े, नहीं हो सकता है, मुश्किल है, ठीक है ना जी। जी। ये हार जाता है। इसी वजह से सौद अलिफ को भी मोटा पढ़ा जाता है। सौदीकीन, वालिमीन। आपको मैंने बताया ना कि अलिफ से पहले अगर मोटा हर्फ हो तो मोटा पढ़ा जाएगा, अगर बारीक हो तो बारीक पढ़ा जाएगा। तो इस सूरत में इस हर्फ के ताबे होकर वो मोटा ही पढ़ा जाएगा। कौन? अलिफ। अलिफ, शाबाश। ऐसे ही वो मद्दा, ऐसे ही वो मद्दा और या मद्दा, हाँ। अगरचे उर्दू में अगरचे उर्दू में मारूफ और मजहूल दोनों तरह मुस्तआमल हैं। मारूफ भी और मजहूल भी, दोनों तरह वाव और या मद्दा। मसलन नूर, नूर का वाव और जमील की या मारूफ है। हम ये मारूफ पढ़ते हैं, मजहूल नहीं पढ़ते हम इसको। नूर, जी, जमील, जी। ठीक है ना जी। जबकि जी। मोर, जबकि मोर, ये मोर, मोर क्या है? वाव क्या पढ़ते हैं हम? मजहूल पढ़। मजहूल पढ़ते हैं। मजहूल। हाँ, जबकि मोर का वाव और दरवेश की या, दरवेश, मजहूल है। लेकिन कुरान मजीद में वाव और या हमेशा मारूफ ही अदा होते हैं। और यानी बड़ी या है नहीं कुरान में। यानी आप अरबी लिखेंगे ना, कोई अरबी चीज लिखो, तो वो छोटी या आ जाएगी, बड़ी या बिल्कुल नहीं आएगी। अरबी अगर लिखे आप, और जी। अरबी खत लिखे आप, तो वो छोटी या आएगी, बड़ी नहीं आएगी। कभी तजर्बा जी। किया है? अब मोबाइल में लिखे या कंप्यूटर में लिखे तो ऐसे नहीं आएगी वो, बड़ी या नहीं आएगी अरबी लिखेंगे तो। समझ आ गई ये जी। बात? जी उस्ताद जी। वाव मद्दा मारूफ की मश्क, वाव मद्दा मारूफ की मश्क। हाँ। ता वाव पेश, ता वाव पेश तू, तू, तो तू, लाम वाव पेश लू, मीम वाव पेश मू, बा वाव पेश बू, नून वाव पेश नू, ठीक है ना जी। यानी इसको थोड़ा सा दो हरकत खींचेंगे। तू, लू, मू, बू,
نو، جیسے یعلمون، یعلمون، دیکھو یعلمون پڑھیں گے حرکت کے ساتھ تو پھر دو حرکت کھینچیں گے یہ واو کو، اگر اگر وقف کر دیں گے تو پھر مد وقفی ہو جائے گی، وقف کی حالت میں مد ہوتی ہے، وہ 6 حرکت بھی کر سکتے ہیں آپ جو ہے، 2 حرکت بھی مد کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، افضل کیا ہے مد وقفی، ٹھیک، مد عارض للسکون 6 حرکت ہے افضل، اور اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے 4 حرکت، اور تیسرا درجہ کیا ہے 2 حرکت، جیسے آپ دیکھا عربی میں الحمد للہ رب العالمین، لمبی بات کر رہے ہوتے ہیں، سنا ہے نا، سورۃ فاتحہ پڑھتے جی ہیں، جی جی تو وہ یہی چیز ہے کہ وقف کی حالت میں یہ آپ 6 حرکت مد کر سکتے ہیں، پھر اگر 4 بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، افضل کیا ہے چھ 6، پھر اس کے بعد کیا ہے درجہ کس کا ہے چار 4 کا، پھر اس کے بعد 4 کس کا 2 دو کا، 2 ہاں، یعنی تینوں کر سکتے ہیں لیکن افضل کیا ہے 6، 6 یاد رکھو، تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف تو یعلمون، اگر وقف یعنی وہ نہ کرے وقف نہ کرے تو پھر 2 حرکت کھینچ کر پڑھیں گے یعلمون، 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 تو یہ غلط ہو کیا جائے گا، پیتے ہو؟ یعلمون، 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 یہ غلط ہو جائے گا، وہ ایک حرف ہم کم کر دیں گے پھر ناقص ہو جائے گا، سمجھ آئے گی بات نہیں آئی، یعنی مد بھی کرنی ہے، آگے آگے ہاں، یؤمنون، یؤمنون، فکلوہ، نوریہ، یوسف، لہذا ہاں؟ لہذا واؤ کو مجہول پڑھنے سے بچیں، لہذا واؤ کو ایک مجہول منٹ ہونے رکو، سے، نیچے لے کے جاتے ہیں. بچ مجہول جائے. پڑھنے سے بچیں، یا مدہ معروف کی مشق، سی، سی، غی، فی، می، صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیجئے، عبادی، عبادی، غی ول، غی ظلم، العالمین، الرجیم، الرحیم، جی، الذین، الذین، سمجھ یہ بات